subtraction, increment, decrement, on which particular operands we can perform this? हम किसके ऊपर इसे परफॉर्म करेंगे? फर्स्टली सी 8 बिट या 16 बिट का नंबर हो सकता है जिसके ऊपर हम ये परफॉर्म करें, या फिर हमारे रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका जो आंसर हमारा आएगा वो स्टोर होने वाला है अगेन इन आवर एक्यूमुलेटर एसी रजिस्टर। फाइन, ओके। तो सेम वे सब्ट्रैक्शन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, सभी में ऐसे ही होगा कि 8 बिट है, 16 बिट नंबर्स होगा, या फिर रजिस्टर के ऊपर काम करेंगे, मेमोरी के ऊपर काम करेंगे, मेमोरी लोकेशन पे, और वहां से जो डेटा मिलेगा उसके ऊपर ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेशन। सो व्हाट आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस? यस, और नॉट, यस, exclusive or, so these can be done. Then a rotate can be done. Now what do you mean by rotate? We discussed about rotate, if you remember. Yes, whatever you know about rotate, a little bit. See, rotate does means what? It is shifting in a way. मतलब rotating, मतलब left या right, ऐसे मतलब in a way एक position पे वो rotate हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे rotate की जगह, rotate में क्या आएगा कि every time मतलब हमारा each beat of our accumulator register will be shifted either left or right in the next position, ठीक है? दैट इज व्हाट इज आर रोटेट। रोटेट क्या करेगा, हमारा एसी रजिस्टर जो है इसके अंदर वो उसके एक एक बिट को शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है? तो वो होगा रोटेट का काम। अभी रोटेट देखा हमने, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और आएगा, कंपेयर आ सकता है। कंपेयर में क्या क्या आएगा? yes, equal to, not equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, ठीक है? So all these things comes under our compare operations. Then complement. Complement does means what you just discussed, like what you just shared. Zero, exactly. 0 to 1 and 1 to 0. That is we are complementing. Zeros complement 1 and 1's complement 0. Fine. Yes. Then branching operations we saw. What is branching operation? Jumping. Jump. Yes. Then call, return, restart. So all these are nothing but are branching operations. Fine, very good, correct. Then there is machine control operations. So when we are talking about machine control operations, what will comes under this machine control operations? Arithmetic, logical. Yes. Arithmetic, logical, copying data, then testing for a given condition, alerting the program sequence. All this comes under our machine control operations. Now when we talk about these things, machine control operation, now how the way our instruction format can be, हमारा instruction का format कैसे रहेगा? If we want to add two numbers, fine, then how the way our instruction format will be? तो एक तो operation code रहेगा और दूसरा रहेगा operand. Now when we are talking about operation code, what can be the operation code? Operation code क्या होगा addition के लिए suppose है तो ADD, add, fine, correct, good, that will be our operation code. और क्या होगा हमारा operand? Operand मतलब किसका हमें addition करना है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं n1 plus n2, तो n1 and n2 are considered as the operand for this instruction. तो n1 n2 किस में जाएगा? operand के अंदर. Are we clear? ओके फाइन, गुड। और साथ में इफ वी वांट वी कैन गिव डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि सपोज हम ऐसा डिस्क्रिप्शन साथ में देना चाहते हैं कि ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी। दो रजिस्टर्स के कंटेंट को हमें सम करना है, एडिशन करना है, तो हम ऐसा भी साथ में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी, and that particular operation add will be performed on register B and register C. Fine. Yes sir. Okay, fine. So अगर हमारा 1 byte instruction है तो यहाँ पे क्या होगा? See,
one let me share my screen just a minute. Okay, is my thing visible to all of you? ओके फाइन. सो सी, अभी यहाँ पे जब भी हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात आती है ना, तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स वी फॉलो. फाइन. हमारा जो सिस्टम है वो तीन तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स फॉलो करता है. तो वेरी फर्स्टली हमारा कौन सा है कि वन वर्ड और वन बाइट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, वन वर्ड या फिर हम बोल सकते हैं उसे वन बाइट इंस्ट्रक्शंस. And same way, two words या फिर हमारा टू बाइट instructions. And same way we have three word or three byte instructions. Fine. So this is basically our instruction format. तो instruction format कितने तरीके के हमारे instruction formats को support करेगा? थ्री टाइप्स के. ठीक है, वेरी फर्स्ट इज इधर वन वर्ड और वन बाइट इंस्ट्रक्शंस, टू वर्ड और टू बाइट इंस्ट्रक्शंस, थ्री वर्ड और थ्री बाइट इंस्ट्रक्शंस. फाइन. तो दैट्स द थिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द वे आर दिस वन वर्ड या फिर आर वन बाइट will work for us. Fine. So for that, let me okay. Now okay, over here. This is in the first part. There will be operation code, and in this second particular part, we are going to have here operand. Fine. In the second part. Now, in the first part over here, just a minute. Let me decrease our font size. How can I do that thing? सो फर्स्टली ओवर हियर सपोज हमें ऐड परफॉर्म करना है, एडिशन. ठीक है, तो ऐड क्या हो गया हमारे यहाँ पे? ऑपरेशन कोड हो गया. नेक्स्ट आ गया हमारा ऑपरेंड. हमें अगर परफॉर्म करना है एडिशन, एडिशन मतलब कि हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने नंबर के ऊपर होगा? वन नंबर के ऊपर. हम इंक्रीमेंट किसके ऊपर? एन प्लस प्लस ए प्लस प्लस. मतलब क्या? सपोज ए का वैल्यू 5 है, तो हमने कितने ऑपरेंड के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है? ऑपरेंड कितने रहे यहाँ पे? वन. ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट टाइप का है वन वर्ड वन बाइट इंस्ट्रक्शन, उसमें ये फॉल करेगा. ठीक है, या फिर आपको अगर हमें ऐसा चाहिए है, अगर एक ही हमारे ऑपरेंड के ऊपर हमें एडिशन भी परफॉर्म करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? सपोज हम डाल रहे हैं यहाँ पे भी, सपोज हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि पहले से हमारे पास एक वैल्यू है एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर्ड है, पहले हमने कुछ परफॉर्म किया था लास्ट में,
वो हमारे पास स्टोर्ड है एक्यूमुलेटर में। अब जो हमारा रजिस्टर बी है तो मुझे एक्यूमुलेटर एसी के वैल्यू में ऐड करना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है, राइट? हाँ, तो द सेम थिंग वी वांट टू परफॉर्म ओवर हियर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, सिर्फ एक ही यहाँ पे मुझे ऑपरेंड का जरूरत है, सिर्फ रजिस्टर डी का ही जरूरत है। अब यहाँ पे आएगा हमारा क्या, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, add the content of register B to the content of AC accumulator. The content of register B to AC. AC does means आप accumulator, fine? Yes, okay. तो दिस इज ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। सो ये क्या हो गया, वेरी फर्स्टली हमारा क्या हो गया, ये ऑपरेशन कोड, ये है ऑपरेशन कोड, ठीक है, ऐड। ये है क्या, बी क्या है हमारा, ये ऑपरेंड। और ये क्या हो गया, ऐड द कंटेंट टू रजिस्टर बी ऑफ रजिस्टर बी टू एक्यूमुलेटर, वो हो गया डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा हो गया हमारा वन वर्ड या फिर हमारा जो वन बाइट इंस्ट्रक्शन है उसका टाइप। आर वी क्लियर विद दिस? कंफर्टेबल है हम? ओके फाइन। अभी नेक्स्ट है हमारा जो कि है टू बाइट या फिर टू वर्ड इंस्ट्रक्शन, फाइन। तो वो हम समझते हैं, उसके अंदर क्या होगा, वो द नेम इटसेल्फ इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेन कि इसके अंदर कैसे रहने वाला है। करेक्ट, वेरी गुड। सो वी आर डीलिंग विद टू ऑपरेंड्स ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास टू ऑपरेंड्स रहेंगे। ओके ओके, नाउ over here ओके, तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ओके यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पहले तो ऑपरेशन कोड हो गया, ठीक है, वेरी फर्स्ट इज आर ऑपरेशन कोड। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ऑपरेंड वन, फर्स्ट ऑपरेंड, राइट। ये हो गया हमारा ऑपरेंड टू। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड अगेन हमें क्या देना है, मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन सपोज हम कर रहे हैं, ऐड ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हो गया ऐड। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, मुझे क्या करना है कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी को ऐड करना है कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी के साथ में। तो दो ऑपरेंड कौन से हो गए हमारे पास यहाँ पे, बी एंड सी, करेक्ट, वेरी गुड, बी एंड सी, फाइन, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। एंड व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन, ऐड, यस, बी, रजिस्टर बी टू कंटेंट ऑफ C. Fine. So in a way, this is how it will be. Okay. तो इसके अंदर ये फर्स्ट क्या हो गया, what's add called as over here? Add क्या है हमारा? ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड। B क्या है, B and C? ऑपरेंड, Yes, and C is our operand 2. And बाद में ये add the content of register B to content of register C is our description, correct, very good. Now in 3 byte instruction, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे 3 byte instruction का, तो क्या रहेगा यहाँ पे instruction में हमारा सबसे पहले ऑपरेशन कोड एंड साथ में इंस्ट्रक्शन एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी हम यहाँ पे साथ में दिखाएंगे। सो इन अ वे बेसिकली यहाँ पे इसकी जरूरत क्या रहती है, हमें ऐसे थ्री वर्ड या फिर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जहाँ पे एड्रेस का भी जरूरत हो, तो वैसे जरूरत कब पड़ेगी? यस,
स्टोर करवाना होगा तभी। यस, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, सी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर के अंदर है, हमें मेमोरी के अंदर हमारा डेटा नहीं ढूंढना है। रजिस्टर के अंदर है तो हमें सीधा क्या बोलना है, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, और उसके अंदर जो डेटा है वो एक ही डेटा होगा, क्योंकि रजिस्टर क्या है, टेम्पररी मेमोरी है, एट ए टाइम जो डेटा होगा वही उसका डेटा है, उसी के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मेमोरी के अंदर से हमें कुछ डेटा ढूंढना है तो हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एड्रेस, क्योंकि मेमोरी में तो ढेर सारा डेटा होने वाला है। तो उतने सारे डेटा के अंदर से हमें कुछ फाइंड आउट करना है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर एड्रेस फॉर दैट। फाइन, अगर मान ले कोई ऐसा सिटी है जिसके अंदर कोई एक ही घर है, ठीक है, तो एड्रेस का जरूरत है नहीं है, हमने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर सिटी ए के अंदर से जाके वो डिलीवर करना है कुरियर, तो उसे एक ही घर के अंदर होगा। पर यहाँ पे क्या है, मेमोरी के अंदर कि बहुत सारे घर है एक ही सिटी के अंदर, तो हमें उसके लिए उसका प्रॉपर एड्रेस देना जरूरी है, ठीक है। तो जब तक बारी थी हमारे सिर्फ रजिस्टर्स की, so we were least bothered about the address, but now in our 3 byte instruction, 3 word instruction, we need to focus on our this address part as well. So when we are talking about this 3 byte, या फिर अगर हम 3rd byte की डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे हमें इसे कौन से टाइप का बोलेंगे कि हाई ऑर्डर एड्रेसिंग हो गया। ये हाई ऑर्डर एड्रेसिंग डज मीन्स व्हाट, कि हम यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर का नहीं बोल रहे हैं, हम एड्रेस इन नंबर, हमारा जो इंटीजर में जो हमारा एड्रेस आता है, या फिर इंटीज जो हमारा लॉन्ग इंट वगैरह जो भी है, उसके अंदर जो हमारा एड्रेस आता है उसमें यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। मतलब एग्जाम में है जिसमें भी पर्टिकुलर हमारा एड्रेस है, उसमें हम यहाँ पे पूरा हमारा एड्रेस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्टली यहाँ पे क्या रहेगा हमारे लिए, लेट अस सी दैट फर्स्ट। तो हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, फॉर 3 word, वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक ओके। नाउ इन फर्स्ट प्लेस यहाँ पे आएगा हमारा, ऑफ कोर्स कोड विल बी इन फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली यहाँ पे आएगा हमारे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन एड्रेस, फाइन। अभी ऑपरेशन कोड है, सपोज हमें क्या करना है, यहाँ पे सोचो कि अगर हमें जंप करना है, जंप की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव होना चाहते हो, ठीक है। हमारे प्रोग्रामिंग सीक्वेंस के अंदर 5th इंस्ट्रक्शन के बाद जंप करके हमें मूव होके हमें जाना है इंस्ट्रक्शन नंबर 100 पे। 5वीं इंस्ट्रक्शन से सीधा हमें 100th इंस्ट्रक्शन पे मूव होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जंप करने के लिए मुझे 100th इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे है वो बताना पड़ेगा हमें। यस मैम। यस, तो उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे इसका जरूरत रहेगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्टली आएगा हमारे ऑपरेशन का कोड, वो हो गया जंप यहाँ पे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हम मान ले, सपोज इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है हमारे पास 3056H, ऐसा कुछ एड्रेस है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शन का। और नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, तो ट्रांसफर प्रोग्राम सीक्वेंस टू मेमोरी लोकेशन एट 3056H लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा 56 है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकंड बाइट, एंड 30 विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बाइट, ठीक है, एज द 3rd बाइट, सॉरी 3rd बाइट। ट्रांसफर प्रोग्राम सीक्वेंस memory location is
056H. Here P6 is second byte, 30 and 30 is फाइन। ऐसा कुछ रहेगा विच इज आर डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। तो बेसिकली ये हमारा जो डेटा है, अगर हम इसे देखने जाए ना, तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। पहला ये जो हमारा है ओवर हियर, ये क्या हो गया हमारा ऑपरेशन कोड, ये हो गया हमारा एड्रेस। एड्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 बाइट, सॉरी सेकंड बाइट एंड थर्ड बाइट। तो इसके अंदर हमारा ओके यहाँ पे ये हमारा हो गया सेकंड बाइट एंड ये बाइट। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट बाइट में क्या आया हमारे ऑपरेशन का कोड, सेकंड बाइट में क्या आया हमारा एड्रेस, थर्ड बाइट में भी क्या आया है हमारा एड्रेस। तो आर वी क्लियर विद दिस? और इसे हम बोलेंगे हाई ऑर्डर एड्रेसिंग मेथड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आवर हाई ऑर्डर एड्रेसिंग मेथड। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। समझ आया है? Yes, ma'am. ओके फाइन। So basically this is our instruction format, instruction cycle we are done with, operations हमने सारे देखे। Next macro and macro operation and micro operations। Yes मैं ये 30 है वो हम थर्ड बाइट में ले लिया, और 56 एच है वो H जो है it stands for our memory, वो मेमोरी के लिए बिलोंग करता है, वो ये दिखाता है ये। ओके मैम। ठीक है, ओके। अभी ये हमारा जो मैक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो ऑपरेशन जो कि हमने देखा था, उसमें क्या देखा था? यस, माइक्रो ऑपरेशंस कौन से आएंगे? क्या क्या हो सकते हैं हमारे माइक्रो ऑपरेशंस? ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ओके देन इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया है तो मैं इसे Yes, निकाल sir. रही हूँ। ओके फाइन। अभी है हमारा, ये है हमारे सारे माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस में क्या आएगा? इंक्रीमेंटिंग अ काउंटर। हम चाहते हैं इंक्रीमेंटिंग अ काउंटर, हम काउंटर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। देन रीसेटिंग आवर रजिस्टर, रीसेटिंग अ रजिस्टर। देन हो सकता है हमारे अरिथमेटिक एंड परफॉर्मिंग arithmetic and logical operations। दूसरे क्या होंगे? यस, रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना आ सकता है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर बिटवीन द रजिस्टर्स। ओके, देन सेटिंग फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। अगर हम रजिस्टर के साथ में डील कर सकते हैं तो फ्लिप फ्लॉप्स के साथ तो क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. यस, रीडिंग फ्रॉम मेमोरी। यस, देन अगर हम रीड कर सकते हैं तो क्या हम राइट भी कर पाएंगे इसमें? यस, writing into our memory। Delete. Yes, we can delete as well।
can do, then we can complement register content. Zeros and ones के complements हमने देखे थे अभी, तो सेम वे ये भी हमारे लिए कर सकता है. Complement register content. And क्या आएगा यहाँ पे? Transfer data from register to external memory. Then transfer data from our external memory to रजिस्टर्स. फाइन. रजिस्टर से अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी में डाल सकते हैं डेटा, तो एक्सटर्नल मेमोरी में से रजिस्टर में भी हम डेटा को यहाँ पे डाल सकते हैं, रख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था एक डायग्राम हमने देखा था. इफ यू रिमेम्बर, हमने एक डायग्राम को थोड़ा सा समझा था, अगर आपको आइडिया है तो. Just a minute. Yes. Okay. This was the diagram. Remember ये हमने डिस्कस किया था. Yes. यहाँ पे PC stands for what are? Yes. Very good. Then MAR? Memory address read. Memory address register. Register. Correct. Then Instruction register. correct. MBR? Buffer. Buffer expression. Correct. AC? करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे MAR एंड PC का जो है ये वाला इंस्ट्रक्शन इसका. ओके. सिग्नल हाँ बिल्कुल बिल्कुल. इट विल एक्टिवेट हाँ करेगा PC और MAR के बीच में. करेक्ट डेटा शेयर करेगा MBR. करेक्ट करेक्ट. वेरी गुड. एंड दिस इज द फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन इन इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल. इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल परफॉर्म करने के लिए ये हमारा वेरी फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है जो कि आपने बताया. वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा PC टू PC प्लस 1 ये वाला. ओके. तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पे? ये हमने क्या किया है? व्हाट वी हैव परफॉर्म्ड ओवर हियर. ये हमने क्या किया? जो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है उसमें +1 करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया. एग्जैक्टली. वी हैव इंक्रीमेंटेड आवर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. वो हमने +1 किया ताकि अब हम कहाँ पे आएंगे? उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा ये MBR एंड AC. कहाँ गया ये? यस. MBR एंड AC से पहले IR टू MAR आएगा. IR, this are IR and MAR. वो यहाँ पे मिसिंग है इसके अंदर, अदरवाइज इट शुड बी देयर. और IR और MAR इन दोनों के बीच में क्या जरूरत होगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. इन दोनों के बीच में यस. ओके. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा? जो लास्ट वाला होगा वो. हाँ वो कैसे मिलेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को? करेक्ट. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर +1 करेगा, बट +1 करना किसका है? तो वो किससे पता चलेगा हमें? MAR से. MAR में क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की करंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा तब जाके हम उसके अंदर प्लस कर पाएंगे ना. राइट. यस करेक्ट. देन MBR एंड AC. ये जो हमारा है इन डायग्राम B, ये MBR एंड AC. व्हाई डू वी नीड इट? ये क्या परफॉर्म करेगा हमारे लिए? MBR में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो परफॉर्म होके AC में लास्ट वाला आंसर. Oh, so in a way you are comfortable with this thing now, right? या फिर आप इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट एक्यूमुलेटर में होगा वो MBR में जाएगा. इसका जरूरत पड़ सकता है कभी हमें कि एक्यूमुलेटर के अंदर लास्ट में हमने जो आंसर रखा था उसे हम बफर में डालेंगे और
उसके ऊपर बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करे, ऐसा हो सकता है जरूर, अभी हमने देखा अगर आपको आइडिया है तो। यस मैम। Okay, perform. Then next is about our bus concept. अभी बस कॉन्सेप्ट की जब भी बात करते हैं, when we are talking about buses, तो what do you mean by buses? buses का जरूरत क्या है? Why do we need them? कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, करेक्ट। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हम कैसे करेंगे with the use of this buses? buses का यूज करके how can we establish our communication? Yes. सिग्नल की तरह कम्युनिकेशन। Okay. So basically, can yes, Adapter हाँ से जी बोलिए। Yes. एडेप्टर के थ्रू करेंगे। Sorry. एडेप्टर होता है ना मैम, वो प्लग इन करने के लिए, हाँ। उसके थ्रू हम करेंगे वो बसेस का इस्तेमाल। Using that as well. Yes. अभी यहाँ पे अगर हम सिर्फ वेरी गुड सिर्फ अगर हम यहाँ पे बस की प्योरली बस की बात करते हैं, तो बस है क्या? बेसिकली बस वी कैन कॉल इट एज अ स्पेशल यूनिट। ये हमारे सिस्टम का एक ऐसा यूनिट है जो डेटा ट्रांसफर के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। इन फर्स्ट प्लेस अगर कोई हमें पूछता है तो ये चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बस क्या है। इट्स अ स्पेशल यूनिट यूज्ड बाय आवर सिस्टम, जो कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। मतलब कि हमारे कीबोर्ड से हमारे डेस्कटॉप मतलब सॉरी हमारे मेमोरी के साथ मतलब सीपीयू के साथ में, या फिर सीपीयू टू आर डिस्प्ले सिस्टम, या फिर सीपीयू टू आर स्पीकर, या फिर मेमोरी एंड सीपीयू, ऐसे इन बिटवीन ये जो डेटा का ट्रैवलिंग हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो अचीव होता है हमारे बस के साथ में, बस की हेल्प से, ठीक है। अभी बस की जब भी बात करते हैं तो बस क्या है? बस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ फिजिकल कनेक्शंस। फिजिकल कनेक्शंस के अंदर जैसे अभी आपने बोला अडेप्टर आएगा, हमारा केबल आएगा, हमारे प्रिंटेड सर्किट्स आएंगे, वायर्स आएंगे, ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है? नथिंग बट द बसेस हैं जो हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। देन उसकी हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के हमारे सिस्टम के, ठीक है। एंड इट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द वन अनदर। क्या एक ही अगर हमारा बस है उसकी मदद से हम मेमोरी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सके और उसी केबल की पर्टिकुलर मदद से हम सीपीयू के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? यस, अगर हम माने कि एक ही केबल की मदद से हम एक्यूमुलेटर के साथ हम हमारे ALU के साथ भी यूज करें और हमारे रजिस्टर के साथ भी शायद से यूज कर ले, तो क्या हो सकता है? हाँ, इंटरनली वो सारे के लिए अलग अलग केबल होंगे, लेकिन अगर हम सीपीयू का डायरेक्टली माने तो हमारा सिस्टम डायरेक्टली सीपीयू के साथ तो एक ही केबल से कनेक्टेड होगा, राइट। तो in a way that is our in and out about bus something in not in detail but अगर हम ऊपर से बोले तो ये हमारा बस है, ठीक है। अभी बस की अगर हम बात करते हैं जब भी, तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा कैसे कैरी करेंगे? अभी किसी ने बोला था हाउ डेटा इज गोइंग टू बी कैरीड अवे ओवर हियर। अभी आपने बोला ना, किसी ने बोला सिग्नल की हेल्प से हम डेटा को कैरी करेंगे, नहीं बोला किसी ने? हाँ, गुड। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो ट्रैवल कैसे करेगा? इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, फाइन। अब जब भी हम यहाँ पे सिग्नल्स की बात करते हैं तो सिग्नल कितने तरीके के होते हैं वो हम जानते हैं कि हमारे एनालॉग डिजिटल, ठीक है, वो नहीं। अगर हम सिग्नल की बात करें तो सिग्नल A to B, A और B इन दोनों के बीच में हमने सिग्नल एस्टैब्लिश करना है। तो क्या दो केसेस हो सकते हैं, इधर फ्रॉम A to B या फिर A to B एंड B to A, मतलब कि या तो एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा या तो फिर दोनों डायरेक्शन में डेटा जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके के यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कितने टाइप के हमारे पास हो सकते हैं? यूनिडायरेक्शनल हो सकता है एंड बाई डायरेक्शनल हो सकता है, करेक्ट, गुड। अब जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे सिग्नल्स के बारे में, हमारे बसेस के बारे में, तो कैसे रहेगा यहाँ पे कि हमारा जो बस है उसका साइज रहता है, फिक्स साइज के बसेस रहते हैं। 32 बिट का बस रहता है, 64 बिट का बस रहता है। तो अकॉर्डिंग टू बस साइज ही हम यहाँ पे डेटा को कैरी कर सकते हैं। मतलब कि 32 बिट का अगर हमारे बस का साइज है तो यहाँ पे कितना डेटा हम कैरी कर पाएंगे? अगेन
32 बिट। अगर 64 बिट का हमारा बस है तो ट्रांसमिट कर पाएगा वो 64 बिट का डेटा। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारा कुछ हमारा डेटा है वगैरह, फ्रीक्वेंसी कैसी, अभी सबसे हाईएस्ट यहाँ पे डेटा कौन पास कर पाएगा? सबसे हाईएस्ट डेटा जो है will be able to pass the highest data. Can we rotate this image over here itself? यहीं पे हम कर सकते हैं? Yes, ma'am. How can we do that? Please help me out. Hmm. ये कैसा होगा यहाँ पे? Anyways, by that time, sorry. हम फोन रोटेट करते हैं। Hmm. Anyways, tell me by that time कि ये जो बसेस हैं यहाँ पे सबसे फास्ट यहाँ पे बस है या फिर सबसे फास्ट यहाँ पे डेटा कैरी कर सकता है, ऐसा हम कैसे बोल पाएंगे? हाउ कैन वी से सो? कम किस पे डिपेंड होगा? साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, उतना बड़ा उतना ज्यादा डेटा पास हो पाएगा। टाइम ज्यादा जाएगा नहीं है, मतलब जितना यहाँ पे फास्ट बस हम किससे बोलेंगे कि जो मतलब ट्रांसफर करेगा डेटा को फास्टर, ठीक है, वो हमारे सिस्टम को, हमारे एप्लीकेशन को और ज्यादा फास्ट कर देगा। अभी फास्टर कैसे बोलते हैं हम कि द नंबर ऑफ डेटा पैकेट सेंट और रिसीव्ड पर सेकंड, वो हमारा बना देगा यहाँ पे साइकिल, मतलब कि एक सेकंड में कोई भी यहाँ पे हमारा बस है वो कितने डेटा पैकेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कोई भी हमारा बस है इन अ सेकंड कितने डेटा पैकेट्स को इन अ सेकंड ट्रांसफर कर सकता है। दैट्स द थिंग, दैट इज द की थिंग कि वो हमारा जितने ज्यादा होंगे यहाँ पे पैकेट्स वो हो गया फास्टर। अब फास्टर की डेफिनेशन ये नहीं है, फास्टर की डेफिनेशन में क्या आ सकता है, एक तो हम कहाँ से कहाँ डेटा भेज रहे हैं, मेमोरी टू सीपीयू जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, साथ में उसका साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, साथ में उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वो सारी चीजें कंबाइन टुगेदर हमारा जो स्पीड है वो डिफाइन करता है। In a way, the bus speed is defined by its frequency and measured in megahertz. ठीक है, वो एक तो फ्रीक्वेंसी में मेजर होगा और मेगाहर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी रहता है तो उसमें ये मेजर होता है। ठीक है, ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यहाँ पे साइकिल किसे बोलेंगे कि ईच टाइम ये जो डेटा है सेंट और रिसीव्ड इज कॉल्ड डेटा साइकिल। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू। ओके, सी यहाँ पे क्या है हमारा, ये है सपोज एक सिस्टम नहीं है, ये सपोज मान लेते हैं हम, हमारा ये मेमोरी है एंड ये सीपीयू है। ठीक है, अभी मेमोरी एंड सीपीयू के अंदर हमारा डेटा आ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस बस। फाइन, ये बस मतलब कि केबल की हेल्प से। अब ये क्या बोलता है कि जितने ज्यादा मतलब इन अ सेकंड, जितने ज्यादा यहाँ पे हमारा डेटा ट्रैवल कर पाएगा इन अ सेकंड, जितने पैकेट्स यहाँ पे ये ट्रैवल कर पाएगा उतना ज्यादा वो फास्ट बनेगा, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इन अ सेकंड कितने पैकेट्स वो यहाँ पे ऐसे पास कर सकता है या फिर इन रिवर्स। ठीक है, तो वो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब साइकिल का मतलब क्या है, ईच टाइम द डेटा इज सेंट और रिसीव्ड इज कॉल्ड अ साइकिल। मतलब कि मेमोरी ने डेटा भेजा था सीपीयू को और सीपीयू ने मेमोरी को डेटा भेजा सामने। ठीक है, मतलब कि दोनों ने एक दूसरे को डेटा शेयर किया, तो ये पूरा जो बना वो हो गया साइकिल। अगर यहाँ से सिर्फ मेमोरी से सीपीयू जा रहा है या सिर्फ सीपीयू से मेमोरी जा रहा है ऑन इट्स ओन, तो वो हो गया क्या हमारा फ्रीक्वेंसी। लेकिन मेमोरी ने कुछ डेटा भेजा था सीपीयू को और इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सीपीयू ने कुछ डेटा भेजा मेमोरी को, तो वो हो गया हमारा पूरा यहाँ पे साइकिल। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। ओके फाइन। अभी यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि बसेस के बारे में, तो बसेस कितने टाइप्स के हैं बेसिकली देयर आर। ओके, हाँ आप बताओ कितने टाइप्स के बसेस हैं हमारे पास में? सॉरी, एड्रेस बस और डेटा yes बस। correct, there are basically 3 types of data buses हमारे, सॉरी buses। very first है हमारा control bus, second is our data bus
एंड थर्ड इज आर एड्रेस बस। फाइन, ओके। अब जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे बसेस के बारे में, तो कौन सा बस ऐसा है यहाँ पे जो कि वन वे में वर्क करता है, कौन सा बस ऐसा है जो कि टू वेज में, इधर वेज में वर्क करता है, बाई डायरेक्शनल है, वन यूनिडायरेक्शनल है, वो आप जानते होंगे। तो आप मुझे बताओ, चलो कंट्रोल बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा ऐसा बस है जो कि हमारा बाई डायरेक्शनल बस है? डेटा बस, करेक्ट। क्योंकि डेटा बस के अंदर मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी दोनों तरीके से डेटा आ जा सकता है, ठीक है। रीड और राइट दोनों हम कर सकते हैं, वहां पे दोनों केस हो सकते हैं। तो डेटा बस इज नथिंग बट आवर बाई डायरेक्शनल बस। अभी एड्रेस बस क्या हो गया हमारा? यूनिडायरेक्शनल बस, करेक्ट। सो नाउ यू नो हाउ द वे इट वर्क्स, मतलब कि ये कौन से वे में ये वर्क करता है ये आप जानते हो, राइट? ओके फाइन। और जो हमारा कंट्रोल बस है वो कैसे वर्क करेगा? कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल बस जो है वो बताता क्या है, बेसिकली कंट्रोल बस का काम क्या है। तो कंट्रोल बस स्पेसिफाइज वेदर मैन बीइंग रीड और रिटर्न टू एंड सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू द मेमोरी, या फिर मेमोरी टू द सीपीयू। मतलब कि मेमोरी में लिख लिया है या नहीं लिखा, या फिर मेमोरी से रीड हमने कर लिया है या रीड नहीं किया है, वो देखेगा और वो सिग्नल भेजेगा सीपीयू को। तो इन अ वे वो सीपीयू टू मेमोरी भी गया एंड मेमोरी टू सीपीयू भी गया है, राइट। पहले वो चेक करने के लिए गया कि क्या वहां पे काम हो चुका है, चेक किया और उसने रिस्पॉन्ड किया सीपीयू को। तो इन अ वे कंट्रोल बस कैसे वर्क करेगा? इन बोथ द वेज, राइट। तो आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके फाइन। अभी जब भी कंट्रोल बस की बात करते हैं तो और क्या आप बोल सकते हो अबाउट दिस कंट्रोल बस? व्हाट वी कैन से ऐड ऑन टू दिस? यस, प्रोग्राम हाँ बोलिए। यस, बोलो बोलो। ओके फाइन। बेसिकली ये कौन यूज करेगा? हमारा सीपीयू यूज करेगा। जो हमारा कंट्रोल बस है इज बीन यूज्ड बाय आवर सीपीयू, ठीक है। इन फर्स्ट प्लेस वो सीपीयू यूज करता है। दूसरा क्या आएगा, किसके लिए यूज करेगा? टू डायरेक्ट एंड मॉनिटर द एक्शंस ऑफ द अदर फंक्शनल एरियाज। करंटली सिस्टम के अंदर हमारे कंप्यूटर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए सीपीयू कंट्रोल बस को यूज करता है कि जो टास्क कुछ दिए गए थे, क्या वो टास्क परफॉर्म हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, तो मॉनिटरिंग करेगा वो। और साथ में यहाँ पे ये एक्शन भी परफॉर्म करेगा, अगर हो चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और नहीं हुआ है तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो देखने का काम किसका है? यहाँ पे हमारे कंट्रोल बस का है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स। और वो वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, इंटरप्ट के लिए हो सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए हो सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट की जरूरत क्यों है? कैसे केस में एक्नॉलेजमेंट का जरूरत आएगा? अभी हमने बात किया उसमें ही एक्नॉलेजमेंट का जरूरत कहाँ हो सकता है? यस, ओके। अगर ये कंट्रोल बस का काम क्या है? बेसिकली देखना कि कुछ काम दिया है, फंक्शन दिया है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, ऑपरेशन दिया था, हुआ है या नहीं हुआ है। हमने दिया था रीड ऑपरेशन, ठीक है। तो रीड ऑपरेशन क्या मेमोरी में से खत्म हो चुका है? तो अब ये क्या बोलेगा हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा? पॉजिटिव मतलब हाँ हो चुका है काम, नेगेटिव मतलब नहीं अभी बाकी है काम होना। एक्नॉलेजमेंट देना मतलब क्या है? फीडबैक दिया उसने। आर वी गेटिंग? समझ आ रहा है ना? Okay. Yes, ma'am. So basically this is all about our control bus. Then next है हमारे दूसरे डेटा बस है। डेटा बस में क्या आएगा यहाँ पे कि वो डेटा के मतलब इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग ये हैंडल करेगा। देन है एड्रेस बस,
एड्रेस बस का जरूरत क्यों है? हमारे डेटा को लेबल करने के लिए। डेटा को लेबल करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि डेटा को डायरेक्टली हम फेच नहीं कर पाएंगे। डेटा अगर है, हम अगर 5 है वो हमारा डेटा है, तो क्या सिस्टम में 5 ऐसे 5 बार हो सकता है 5, ठीक है? तो कौन से 5 के ऊपर हमें जाना है? सपोज हमारे क्लास का ही देख ले, तो वहां पे अगर 2 क्लासेस 3 क्लासेस साथ में बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगी 5, तो कैसे पता चलेगा कौन से 5 को मैं पूछ रही हूँ? 3 डिविजन है, तीनों में 1 to 100 1 to 100 1 to 100 रोल नंबर्स है। इफ आई से 5 रोल नंबर, तो कितने लोग वहां पे हो सकते हैं? 3 लोग हो सकते हैं। अगर मैं बोलती हूँ A5, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने एड्रेसिंग दे दिया कि A5, तो डिवीजन A से रोल नंबर 5। अगर B5, तो डिवीजन B का रोल नंबर 5। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डेटा को एड्रेस देना पड़ेगा, और वो काम यहाँ पे होगा with the help of our address bus, which will help us to perform labeling or symbols to the other our characters or other data which has been used in our computer system. Are we clear with this thing? Yes, ma'am. Okay, fine. So समझ आया है आज जो भी हमने पढ़ा है उसका? Yes, ma'am. Okay, fine. So today we are keeping till this. Hope you enjoyed the class. समझ में आया है सारा कुछ, right? Yes, I am going to wind up the class.